Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, We are coming to the second to last message from the series entitled Freedom from Fear. हम भय से स्वतंत्रता श्रृंखला के अंतिम से पहले संदेश पर पहुंच गए हैं And I want you to use your imagination today. और मैं चाहता हूं कि आज आप अपनी कल्पना का प्रयोग करें। I want you to imagine yourself driving a car along the road. मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करें कि आप सड़क पर अपनी कार में जा रहे हैं। When all of a sudden a red light in your dashboard comes on. तभी अचानक आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड में एक लाल बत्ती जलने लगती है। It says engine trouble. ये कहती है इंजन में समस्या। Now here's the trick. अब ये है छलावा। A car keeps on running as good as ever. कार पहले के समान ही चलती जा रही है। It never stops. ये रुकती नहीं है। There is no noise or knock. इंजन में से कोई ऐसी वैसी आवाज नहीं आ रही है। There are no visible signs of trouble whatsoever. किसी भी तरह की समस्या के कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे हैं, Except for one thing. केवल एक चीज के सिवाय, That dreaded light. वो भयभीत करने वाली लाल बत्ती। I am sure if I talk to you face to face, I would ask you, what would you do? मुझे यकीन है कि यदि मैं आपके आमने सामने आपसे बात करूं तो मैं आपसे पूछता कि ऐसे में आप क्या करते। I would probably get varieties of answers. शायद मुझे कई तरह के उत्तर मिलते। But if you are a non-mechanical like me, परंतु यदि आप भी मेरी तरह मशीनी व्यक्ति नहीं हैं, you would go to the nearest mechanic and have the engine checked. तो आप पास के किसी मैकेनिक के पास जाकर इंजन की जांच करवाते। Today, I would like to tell you that fear in your life is like that light in your dashboard. आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में भय डैशबोर्ड में जलती हुई उसी लाल बत्ती की तरह है। Just as the light in your dashboard is connected to the engine, your fear is connected to faith. जैसे डैशबोर्ड की वो बत्ती इंजन के साथ जुड़ी हुई है, बिल्कुल वैसे ही आपका भय आपके विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। Fear is an indication that there is a problem with faith. भय इस बात का संकेत है कि आपके विश्वास के साथ कोई समस्या है। When fear is up, it is a sure thing that faith is down. जब भय ऊपर है तो ये निश्चित है कि विश्वास नीचे है। I want to show you this from the Word of God. मैं परमेश्वर के वचन से ये आपको दिखाना चाहता हूँ। If you do have a Bible, turn to Matthew chapter 8 verse 23. यदि आपके पास बाइबल है तो कृपया मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 23 पद पर खोलिए। Jesus and the disciples got into the boat. यीशु और उसके शिष्य नाव में चढ़े And all of a sudden, a treacherous storm arose and threatened to destroy the boat and drown those who were experienced fishermen. और अचानक एक खतरनाक आंधी उठी और नाव और उन सब को जो बहुत अनुभवी मछुआरे थे डुबाने का भय बन गई। These men probably knew everything about the Lake of Galilee more than anybody else. ये मनुष्य शायद किसी और से कहीं अधिक गलील की इस झील के बारे में सब कुछ जानते थे। In the middle of their panic, they woke Jesus up. अपने आतंक के बीच में उन्होंने यीशु को जगाया। He was sound asleep at the time. वो उस समय गहरी नींद में सो रहा था। They yelled, "Wake up! Don't you care if we perish?" वो चिल्लाए, उठ जा, क्या तुझे परवाह नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं। Jesus said to them, right in the middle of the storm, और आंधी के बीच में यीशु ने उनसे कुछ कहा और मैं नहीं चाहता कि ये आपसे चूक जाए जो उसने कहा। "You of little faith, why are you so afraid?" हे तुम अल्प विश्वासियों, तुम इतने भयभीत क्यों हो। Now, I want to tell you some facts about this cruise liner that was near disaster situation. अब मैं आपको इस समुद्री जहाज के बारे में कुछ तथ्य बताता हूं जो डूबने के करीब था। First, पहला, it occurred at night, which makes it more difficult to cope. ये घटना रात में घटी जिस कारण इससे निपटना और भी कठिन था। They had to battle both the darkness and the storm at the same time. उन्हें एक ही समय पर अंधेरे और आंधी दोनों से लड़ना था। Secondly, दूसरा, there were no signs of a storm brewing when they embarked on their voyage. जब वो अपनी यात्रा पर निकले तो आंधी आने का कोई निशान नहीं था। If there had been a slightest sign of a storm, these experienced fishermen would not have gotten into the boat. यदि आंधी का जरा सा भी संकेत होता तो ये अनुभवी मछुआरे कभी भी नाव में सवार नहीं होते। Third, तीसरा, they had no life jackets. उनके पास जीवन रक्षक कोट नहीं थे। They had no lifeboats. उनके पास रक्षा नौकाएं नहीं थी। They had nothing. उनके पास कुछ नहीं था। Where was Jesus during this time? इस समय यीशु कहाँ था? He was having the best night's sleep. वो रात की सबसे बढ़िया नींद का आनंद उठा रहा था। So they woke him up. तो उन्होंने उसे जगाया। Listen to what Luke said. सुनिए लूका ने क्या कहा। They yelled at him saying,
वो उस पर चिल्ला कर बोले, wake up, don't you care if we perish? उठ जा, तुझे परवाह नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? Jesus got up and said, यीशु उठा और उनसे कहा, ye of little faith, why were you so afraid? हे तुम अल्प विश्वासियों, तुम इतने भयभीत क्यों हो? Now, if that was me, I would have said this to the Lord. अभी यदि मैं वहां होता तो मैं प्रभु से कहता, Lord, should you not stop the storm first, then talk to us about faith? प्रभु तुझे पहले आंधी को नहीं रोकना चाहिए और फिर हमसे विश्वास के बारे में बात कर? Shouldn't you just get us out of this mess first? तुझे पहले हमें इस मुसीबत से नहीं निकालना चाहिए? But that's not how God works. परंतु ये परमेश्वर के काम करने का तरीका नहीं है। You know why? आप जानते हैं क्यों? He knows that the moment he stops the storm, you will not listen anymore. वो जानता है कि जैसे ही वो आंधी को रोक देगा, आप फिर उसकी नहीं सुनेंगे। The moment the storm passes, the listening time is gone. जैसे ही आंधी खत्म, सुनने का समय खत्म। You will forget all about him until the next storm comes. आप उसके बारे में सब भूल जाएंगे जब तक कि अगली आंधी नहीं आती। Someone said the following. किसी ने इस प्रकार से कहा है, If I prayed as much on a daily basis as I pray when there is a storm in my life, यदि मैं प्रतिदिन उतनी प्रार्थना करता जितनी मैं जीवन में किसी आंधी के समय करता हूं, I would be the greatest spiritual giant in the world. तो मैं संसार में सबसे बड़ा प्रार्थना महामानव होता। We are forgetful creatures. हम भूलने वाले प्राणी हैं And God wanted to teach them and teach us a very important lesson. और परमेश्वर शिष्यों को और हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक देना चाहता था। He wants to grow us up before he intervenes. वो चाहता है कि उसके दखल से पहले हम बढ़ना शुरू करें। He wants to train us in order for us to know how to rule and reign with him. वो हमें इस प्रकार से प्रशिक्षित करना चाहता है कि हम उसके साथ मिलकर राज और शासन करना जान लें। Most of us are anxious to see the hand of God. हम में से अधिकतर परमेश्वर के हाथ को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। We would say, God, work a miracle first. हम कहते हैं, परमेश्वर पहले आश्चर्यक्रम दिखा, Deliver us first. पहले हमें छुड़ा, Answer our prayer first. पहले हमारी प्रार्थना का उत्तर दे, Help us first. पहले हमारी सहायता कर। But that's not the way God works. परंतु ये परमेश्वर के कार्य करने का तरीका नहीं है। Many times he waits until he is sure that we have learnt the lesson and passed the test before he will answer your prayers and hand you the diploma. बहुत बार वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देने से पहले और आपको डिग्री थमाने से पहले वो तब तक प्रतीक्षा करता है जब तक उसे ये निश्चय नहीं हो जाता कि आपने सबक सीखकर परीक्षा को पास कर लिया है। I heard about a man who asked God the following question. मैंने एक व्यक्ति के विषय में सुना जिसने परमेश्वर से ये प्रश्न पूछा, Lord, is it true that 1,000 years is like 1 second to you? प्रभु क्या ये बात सच है कि तेरे लिए 1000 वर्ष 1 सेकंड के समान है? And he heard God to say, yes, this is true. और उसने परमेश्वर को कहते सुना, हाँ ये सच है। The man then asked again, उस व्यक्ति ने फिर पूछा, is it true, Lord, that $1 million is just like $1 to you? प्रभु क्या ये सच है कि 10 लाख डॉलर आपके लिए केवल $1 के समान है? And he heard God to say, yes, this is true. और उसने परमेश्वर को कहते सुना, हाँ ये सच है। Then the man thought for a minute and said, फिर उस व्यक्ति ने 1 मिनट के लिए सोचा और फिर पूछा, can I have one of your dollars? क्या आपके डॉलरों में से मैं $1 ले सकता हूँ? And God said, just a second. और परमेश्वर ने कहा, 1 सेकंड रुको। I want you to notice how the Lord Jesus Christ links fear with faith. मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि प्रभु यीशु मसीह भय को विश्वास के साथ कैसे जोड़ते हैं। Why is he linking faith with fear? वो विश्वास को भय के साथ क्यों जोड़ रहा है? Because he wanted his disciples and us to learn that no matter how fearful the situation may be, faith defeats fear. क्योंकि वो अपने शिष्यों और हमें सिखाना चाहता था कि कोई फर्क नहीं पड़ता, स्थिति कितनी भी भयभीत करने वाली क्यों ना हो, विश्वास भय को हराता है। Faith overcomes fear. विश्वास भय को जीत लेता है। And Jesus was asking them, where is your faith? और यीशु उनसे पूछ रहा था, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? Now, I want to stop here for a moment and tell you a couple of things about me so that you don't think that I am just preaching to you. अब एक पल यहाँ रुककर मैं आपको अपने बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं ताकि आप ये ना सोचें कि मैं केवल आपको ही प्रचार कर रहा हूं। I don't want you to think that I really don't understand anything about fear. मैं नहीं चाहता कि आप सोचें कि असल में मुझे भय के बारे में कुछ भी समझ नहीं है, Or just I am giving you a theoretical knowledge about fear. या भय के बारे में मैं आपको केवल तथ्यात्मक ज्ञान दे रहा हूं। In my life, I have been in situations where I knew raw, rash, naked fear.
मेरे जीवन में मैंने ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है जहां मैंने कड़े, कठोर और नंगे भय को जाना है। And I know fear to be the most demoralizing experience in human existence. और मैं जानता हूं कि भय मानवीय अस्तित्व में सबसे बड़ा निरुत्साहित करने वाला अनुभव है। Until the day I die, I'll never forget standing in front of a very powerful man in a country. मेरे मरने के दिन तक भी मैं नहीं भूलूंगा जब मैं एक देश में एक बहुत शक्तिशाली आदमी के सामने खड़ा था। Probably one of the most ruthless men on the face of the earth. शायद वो धरती पर सबसे जालिम व्यक्ति था। And he looked at me and said, और उसने मेरी ओर देखकर कहा, I can either kill you now or banish you in few minutes and I will become a hero. या मैं अभी तुझे मार सकता हूं या कुछ ही मिनटों में देश निकाला देकर जननायक बन जाऊंगा। I remember standing there shaking like a leaf on a tree. मुझे याद है वहां खड़ा मैं पत्ते की तरह कांप रहा था। And I was saying to God, और मैं परमेश्वर से कह रहा था, this is not the great ministry that you promised me since the age of 16 when I committed my life to you. ये वो महान सेवकाई नहीं है जिसका तूने मुझसे 16 वर्ष की आयु में वादा किया था जब मैंने अपना जीवन तुझे अर्पित किया था। I cannot minister if you take me to heaven. यदि तू मुझे स्वर्ग ले जाए तो मैं तेरी सेवा नहीं कर सकता। What I want you to know is that I understand the subject of fear. मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि मैं भय के विषय को समझता हूं। I believe these were all lessons that the Lord used to teach me in my early years how to take authority over the spirit of fear. मेरा विश्वास है कि ये सब वो सबक थे जो प्रभु मेरे प्रारंभिक वर्षों में मुझे सिखाता था कि भय के आत्मा पर प्रबल कैसे हुआ जाए। And I believe that this is what the Lord wants for all of us to learn as His children. और मेरा विश्वास है कि यही है जो प्रभु हम सबको उसके बच्चों के रूप में चाहता है कि हम सीखें। If you are a child of God, He wants you to learn to take authority over fear. यदि आप उसकी संतान हैं तो वो चाहता है कि आप भय पर नियंत्रण करना सीखें। When Jesus said to His disciples, "Oh, men of little faith," जब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, हे तुम अल्प विश्वासियों, I want you to put a circle around the word little. मैं चाहता हूं कि आप इस शब्द अल्प पर एक घेरा बनाएं। Why are you so afraid? तुम इतने भयभीत क्यों हो? Now I want you to put a circle around the word so. अब मैं चाहता हूं कि आप इस शब्द इतने पर भी एक घेरा बनाएं। In the grammatical construction of that sentence, these two words are very important. इस वाक्य की व्याकरण बनावट में ये दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। He was saying that faith and fear are on opposite sides of the seesaw. वो कह रहा था कि विश्वास और भय ढेंकुल के दोनों ओर आमने सामने हैं। When faith rises, जब विश्वास ऊपर उठता है, fear falls. भय नीचे गिर जाता है। And when fear rises, और जब भय ऊपर उठता है, faith falls. विश्वास नीचे गिर जाता है। The two are in inverse proportion to each other. दोनों एक दूसरे के विपरीत स्थिति में है। When faith is at 100%, जब विश्वास 100% पर है, fear is at 0%. भय 0% पर है। When faith is at 50%, जब विश्वास 50% पर है, fear is at 50%. भय 50% पर है। When faith is at 20%, जब विश्वास 20% पर है, fear is at 80%. भय 80% पर है। You understand what I'm trying to tell you? आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या बताने का प्रयत्न कर रहा हूं? How do I know that? मैं ये कैसे जानता हूं? It's right there in the grammatical construction of the sentence. ये बिल्कुल यही वाक्य की व्याकरण रचना में है। The Lord Jesus relates the word little to the word faith. प्रभु यीशु इस शब्द अल्प को शब्द विश्वास के साथ जोड़ता है। And He relates the word so to the word afraid. और वो शब्द इतने को शब्द भयभीत के साथ जोड़ता है। But here is the good news of this rebuke. परंतु इस डांट डपट की खुशखबरी ये है, Fear cannot dominate faith. भय विश्वास पर प्रबल नहीं हो सकता। Fear cannot undercut faith. भय विश्वास की कीमत को कम नहीं कर सकता। Fear cannot destroy faith. भय विश्वास को नाश नहीं कर सकता। Fear cannot damage faith. भय विश्वास को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। No matter how frightening the situation may be, कोई फर्क नहीं पड़ता स्थिति कितनी भी डरावनी क्यों ना हो, no matter how relentless the attack of the spirit of fear may be upon your life, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके जीवन पर भय की आत्मा का प्रहार कितना भी कठोर क्यों ना हो, all that fear can serve is to cast a light on the situation of your faith in order to know where you stand. वो भय केवल आपके विश्वास पर रोशनी डालने के काम में आ सकता है ताकि आप जान लें कि विश्वास में आप कहां खड़े हैं। All that fear can do is
reveal how strong or how weak your faith is. भय केवल ये प्रकट करने के काम में आ सकता है कि आप अपने विश्वास में कितने मजबूत या कितने कमजोर हैं। Now I want to stop here for a moment and define faith. अब मैं कुछ देर यहां रुककर विश्वास के बारे में विस्तार पूर्वक बताना चाहता हूं। By faith, I do not mean faith in yourself विश्वास से मेरा अर्थ आपके अंदर का विश्वास नहीं है, or faith in your ability या आपकी योग्यताओं में आपका भरोसा, or faith in your grit and wit. या आपके साहस या समझबूझ पर आपका विश्वास। This is not the biblical faith that Jesus is talking about. यीशु यहां पर बाइबल के विश्वास की बात नहीं कर रहा है, Neither is he talking about saving faith. ना ही वो उस उद्धार के विश्वास की बात कर रहा है। Saving faith is a gift from God that is given to you. उद्धार का विश्वास वो वरदान है जो परमेश्वर की ओर से आपको दिया जाता है। Saving faith is the time when your spiritual eyes are open and you realize the enormity of your sin and your desperate need for forgiveness. उद्धार का विश्वास वो समय है जब आपकी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं और आप अपने पाप की गहनता और उससे क्षमा पाने की तीव्र इच्छा महसूस करते हैं। Saving faith is given so that you may believe in the Lord Jesus Christ and receive him as Savior and Lord. उद्धार का विश्वास आपको दिया जाता है ताकि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसे अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। But the faith that Jesus is talking about here is the absolute trust and surrender to the trustworthiness of God. परंतु वो विश्वास जिसके बारे में यीशु यहां बात कर रहा है वो है परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर संपूर्ण भरोसा और समर्पण करना। This faith is the kind of daily faith that opens your heart to receive whatever God wants to give you for that day. ये विश्वास प्रतिदिन के विश्वास की तरह है जो आपके हृदय को वो स्वीकार करने के लिए खोलता है जो परमेश्वर आपको उस दिन के लिए देना चाहता है। Faith here is your daily living in utter dependence on the sovereignty of God in your life. यहां पर विश्वास है आपके जीवन में परमेश्वर की प्रभुसत्ता पर आपका प्रतिदिन पूर्ण निर्भरता के साथ जीना। Faith here means that even when things look bleak and dark, यहां विश्वास का अर्थ है चाहे जब सब कुछ धुंधला और अंधकार पूर्ण भी दिखे, even when the storm is raging and is at its worst, चाहे जब आंधी प्रबल हो और अपनी पूरी ताकत में हो, you are trusting totally that God is working his purpose out because he loves you. तो यहां विश्वास का अर्थ है कि आपको पूर्ण रीति से इस बात पर भरोसा करना है कि परमेश्वर आपके लिए निकलने का रास्ता बना रहा है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। Listen to Proverbs 29:25. नीति वचन की पुस्तक 29 अध्याय का 25 पद सुनिए। Fear of man will prove to be a snare, मनुष्य का भय फंदा बन जाता है, but whoever trusts in the Lord is kept safe. परंतु जो प्रभु पर भरोसा करता है वो सुरक्षित रहता है। What does that mean? इसका क्या अर्थ है? It means that faith is the trigger that activates God's blessings upon your life. इसका अर्थ है कि विश्वास वो बटन है जो आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषों को क्रियाशील बनाता है। Some years ago, I was talking to a friend. अब कुछ वर्ष पहले मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था। He has been going through a tough time in his life of suffering and fear. वो अपने जीवन में भय और दुखों के कठिन समय में से गुजर रहा था। And I was pointing out to him how fear was related to faith. और मैं उसे बता रहा था कि कैसे भय विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। And he snapped back at me and said, और वो खींच कर मुझसे बोला, there is nothing wrong with my faith. मेरे विश्वास में कोई गड़बड़ नहीं है। And he was quite right. और वो बिल्कुल सही था। There was nothing wrong with his saving faith. उसके उद्धार के विश्वास के साथ कोई समस्या नहीं थी। He was a man who truly committed his life to the Savior. वो ऐसा व्यक्ति था जिसने सच में अपना जीवन उद्धारकर्ता को सौंपा था। But the problem was not with his saving faith, परंतु समस्या उसके उद्धार के विश्वास के साथ नहीं थी, but it was with his daily living faith. परंतु समस्या थी उसके प्रतिदिन के जीवन के विश्वास में। I want you to listen to what I'm going to tell you very carefully. This is very important. मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। Daily living faith rises and falls, प्रतिदिन जिया जाने वाला विश्वास उठता है और गिरता है, but your saving faith does not change. परंतु आपका उद्धार का विश्वास नहीं बदलता। Daily living faith goes up and down depending on how closely you're walking with God. प्रतिदिन जिए जाने वाले विश्वास का ऊपर नीचे होना इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी समीपता से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। But saving faith never changes. परंतु उद्धार का विश्वास कभी नहीं बदलता। When Jesus rebuked the disciples for their lack of faith, जब यीशु ने शिष्यों को उनके विश्वास की कमी के लिए डांटा, he was talking about their failure to trust him in the practical situation. तो वो व्यवहारिक स्थिति में उनकी उस पर भरोसा न रख
पाने की असफलता के बारे में बात कर रहा था, failing to trust Him in this particular circumstances of their life. उनके जीवन की इस खास परिस्थिति में उस पर भरोसा न रख पाने की उनकी असफलता। Listen to what Paul said in 2 Timothy 1:12. सुनिए तिमोथेस की दूसरी पत्री उसके 1 अध्याय के 12 पद में पौलुस ने क्या कहा। I'm going to let this bring us to a conclusion. मैं इसे निष्कर्ष पर ला रहा हूं। I know whom I have believed, मैं जानता हूं मैंने किस पर विश्वास किया है, and I am convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him until the last day. और मुझे निश्चय है कि वो अंतिम दिन तक उसकी रक्षा कर सकता है जो मैंने उसे सौंपा है। Let me ask you this concluding question. चलते चलते मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, Can you say that with the Apostle Paul? क्या आप भी प्रेरित पौलुस के साथ मिलकर ऐसा कह सकते हैं? Time has run out, and I want you to keep asking that to yourself. समय समाप्त हो चुका है और मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से ये प्रश्न पूछते रहें And tune in next time as you will hear more about faith and fear. और भय और विश्वास के बारे में और अधिक सुनने के लिए अगली बार अवश्य कार्यक्रम में सम्मिलित होइएगा। Until then, I wish you God's richest blessing. तब तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूं।